Hi buddies, I hope you all are fine at your home and practicing a lot of journal. This is our second last lecture regarding journal and some specific entries are there which I am going to explain you here, and after that one more lecture will come and where we will do the compare study of journal and ledger and how to transfer the journal entries in the ledger, that we will try to understand. Already I explained you this thing. If your journal is correct, then only your ledger and other books will be correct. If there is error or mistake in your journal, then automatically children, whatever the further books are there, that everything will be ultimately become wrong. So you must be cautious when you pass the journal entries, and here I have written some specific journal entries and let's talk about it, because इससे पहले हम लोगों ने इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया था. ये थोड़ी यूनिक टाइप की है and how to settle it, how to solve it, let's try to understand it. So first is given a business is commenced. Commenced means started. एक बिजनेस शुरू किया. कमेंस करना मतलब शुरू करना. A business is commenced. Receivable rupees 25,000 मतलब 25,000 रुपए किसी से मिलने वाले थे, उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया. लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 1,000 1,000 रुपए की बिजनेस में लाइबिलिटी शुरू में ही हो गई, मतलब आपको पे करना पड़ा. एंड गुड्स रुपीज 15,000 और 15,000 रुपए का आपने गुड्स इंट्रोड्यूस किया. अब देखो, व्हेन यू आर रिसीविंग, ओके हियर कैश यू आर नॉट रिसीविंग, क्योंकि रिसीव्ड नहीं बोला है, रिसीवेबल मिलना है. तो व्हेनेवर समवन समथिंग यू आर गोइंग टू रिसीवेबल, दैट समवन इज देयर हु इज गोइंग टू गिव यू. इज इट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड द डेटर. तो यहां पर डेटर आपका जो है डेबिट हो जाएगा, बिकॉज डेटर आपके लिए यहाँ पे एसेट है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, याद रखना. डेटर इज योर एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन. इज इट क्लियर? डेटर को यहाँ पे पर्सनल अकाउंट गिनने की भूल मत करना, गलती नहीं करना. ओके, सो हियर व्हेन वी पास दिस एंट्री 1,820, okay, so debtor account debit. At the same time you are taking goods, आप goods भी ले रहे हो, so purchase account debit. ओके, एंड आपने लाइबिलिटी पे की है. लाइबिलिटी अब आप जब दे रहे हो, लाइबिलिटी मतलब यू हैव टू पे समथिंग, किसी को दे रहे हो. ओके, एंड ही इज योर क्रेडिटर. इज इट क्लियर? तो यहां पर ऐसे आ जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट and to capital account. क्योंकि capital also liability है. Okay, and creditor means the giver who is giving you the goods. Credit the giver, जो दे रहा है उसको हम लोग यहाँ पर जो है, जिसको देना है, सॉरी. ओके, तो debtor is how much? 25,000. Your purchase is 15,000. अब आप इन दोनों को काउंट करो तो यहाँ पे देखो ये 40,000 रुपीज होता है. लेकिन उस 40,000 में से आपने लाइबिलिटी कितने की पे की? हम थोड़ा ठीक कर लेते इधर इजी करने के लिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. 10,000 रुपीज कर देते हैं यहाँ पे. तो आपका जो क्रेडिटर है वो 10,000 रुपीज हुआ. ओके, तो अब 40 में से 10,000 जाएगा तो कैपिटल कितना आएगा? 30,000.
Is it clear? तो 30,000 का कैपिटल हो गया 10,000 एंड लाइक दिस वे दिस एंट्री विल पास. इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने लिखना है, लेकिन यू हैव टू राइट इट. यू हैव टू राइट द नरेशन. बीइंग बिजनेस स्टार्ट enough. There is no need to explain that from liability how much you have taken, or sorry, asset how much you have taken, or liability how much you have given. There is no need to write express all that things. Just shortly you can write being business start. Second, second 820. Borrow of rupees 30,000 from Smruti as loan at the rate of 10%. स्मृति से आपने लोन लिया है. स्मृति यहां पर गिवर है एंड लोन आपको किस फॉर्म में आ रहा है? कैश फॉर्म में आ रहा है. व्हाट इज कैश? रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. सो कैश अकाउंट debit to Smruti loan account. Cash account debit to Smruti loan account, and amount is your 15,000. This is your second entry. Third entry, open bank account in BOB, that is Bank of Baroda, with rupees 15,000. Fourth date. Now, when you open the bank account, at that time bank is receive your cash, and your cash is going from your counter to bank. So cash is going, bank is receiving that cash, bank is personal account, debit the receiver. So here you will write Bank of Baroda account debit. What is going from you? Okay, cash is going to cash account. Bank of Baroda account debit to cash account, and your amount is again, sorry, you borrowed 30,000. sorry. मेरी देखने में जरा आंखें इधर उधर हो गई. 30,000 का लोन लिया, सॉरी. बैंक ऑफ बड़ौदा 15,000. ओके, अब ये जो एंट्री है इसके बाद में ये भी आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा ट्विस्टिंग अभी मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज गुड्स फ्रॉम रतन स्टोर 30,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर आपने रतन स्टोर से गुड्स परचेज किया है. तो 30,000 का 10% अगर आप निकालते हो तो 3,000 आता है. देखो 30,000 का 10%, so this is 3,000. यानी आपको गुड्स कितने में पड़ा? 27,000 में पड़ा. Is it clear? So next entry is you have purchased the goods. Goods is coming in your business. Okay, and this is credit transaction because trade का बात किया है, दूसरा कैश की कोई वो नहीं है. Okay, so next is your 6, 6, 8, 20. Purchase account debit to, who is the giver of goods? Ratan store. Ratan
purchase account debit to Ratan store account and your amount is now 27,000 because 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है। यहाँ पे जब आप सामान खरीदते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, सो यू रिसीव्ड डिस्काउंट हियर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज। बच्चों अभी तक हम लोगों ने ऐसी एक भी एंट्री की नहीं है और दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। ये हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, बराबर है। ये बोल रहा है अभी यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज फ्रॉम कृति, 10% रेट डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। अब बराबर से सुनना ही है इस चीज को। मैं ऊपर के जो है 3 एंट्रीज रब कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड कर सको। इतना मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, जरा एक बार देख लो। ओके, नाउ सी I am showing you the calculation here. Now see, goods is ₹50,000। ये 50,000 रुपए का जो है सामान है भैया। इसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, अब इसका अगर आप 10% निकालोगे तो डेफिनेटली 5,000 रुपए आएगा। देखो, एक जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, तो ये गुड्स एग्जैक्टली अब कितने का पड़ा आपको? 45,000 का। यू हैव रिसीव्ड गुड्स ऑफ ₹45,000। ओके, और इस 45,000 में से बराबर है, सॉरी पहले तो इसका डिस्काउंट ही निकाल देते हैं। इसका जो है क्या कहते हैं, इसने बोला 10% कैश डिस्काउंट, तो 10% कैश डिस्काउंट करोगे तो 4,500 आएगा। ओके, इज इट क्लियर? 4,500 आएगा। अब बराबर से समझना, अभी अंडरस्टैंड करना है इसको। 4,500 आया, लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है? हाफ अमाउंट, यानी कि यूं समझो तुम लोग कि 45,000 का आधा यानी कितना होगा? 45,000 का आधा कितना होगा? 45,000। तो अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 22,500 होगा। देखो यहाँ पे 2 2s are 4, 2 7s are 14 and 2 5s are 10, समथिंग 27,000। क्या गड़बड़ हुई भाई? 2 2s are 4, oh sorry 2 2s are 4, then again ये 5 कैरी किया, 2 2s are 4, 1 and 2 5, so sorry, बराबर है 22,500, यानी कि 45,000 का आधा कितना हुआ? 22,500। ठीक है, बराबर समझना अभी इसको। 22,500 हुआ, यानी दूसरा 22,500 यही आधा अमाउंट आपने जो है कैश पे किया। अब डिस्काउंट आपको कितने में मिलेगा? जितने में आपने कैश किया, तो आपका टोटल डिस्काउंट अगर यहाँ पे अगर 4,500 है टोटल अमाउंट के ऊपर, तो आधे के ऊपर इसका 10% कितना हो जाएगा? 2,250 रुपए। इज इट क्लियर? और इस हिसाब से यहाँ पे कैसे अमाउंट जाएगा? देखो 0, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 4 में से 2 लेस करेंगे 2, 0 का 0,
20,250 आपने कैश पे किया, बराबर है। 2,250 का आपको डिस्काउंट आया, बराबर है। और 22,500 अभी आपको पे करना बाकी है, बराबर है। ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इतना आपका पार्ट क्रेडिट है। इज इट क्लियर? तो अब फर्स्ट थिंग हम एक एंट्री तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, बराबर है, कि परचेज अकाउंट डेबिट, वो तो अपने को क्लियर हो गया। क्योंकि गुड्स हैज कम, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। परचेज अकाउंट डेबिट कितना है टोटल गुड्स? 45,000। इज इट क्लियर? ओके, अब ये तो क्लियर हो गया। अब गुड्स आया, एट द सेम टाइम हमने पैसा पे किया, वी पेड द कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब कितना पैसा पे किया हम लोगों ने? वी हैव पेड 22,500, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, आधा अमाउंट जो है इसमें कैश में पे किया और आधा जो है क्रेडिट में रह गया, तो आधा अभी हमने दिया नहीं है, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? जितने का हमने जो है पे किया है। तो डिस्काउंट हमने जो है पे किया है, तो उसका हमने कितना पे किया डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में? 20,250। तो यहाँ पर 20,250 एक। अब कितना देना बाकी है? 22,500। तो किसको देना बाकी है? बराबर है, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज द गिवर हियर? किससे खरीदा हमने सामान? कृति। ओके, टू कृति अकाउंट, ओके, तो कृति अकाउंट। अब कृति को हमको कितना पे करना है? तो 22,500। अभी भी कुछ बाकी रह गया है? यस, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज प्रॉफिट फॉर अस, ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड। तो हमको यहाँ पर जो है टू डिस्काउंट अकाउंट, देखो 3 अकाउंट क्रेडिट हुए यहाँ पे, डिस्काउंट अकाउंट, ओके। एंड हाउ मच इज दैट डिस्काउंट? दैट इज 2250, 2250। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखो 20,250 प्लस 22,500 and 2250 and you add it, 0, 5, 5, 10, 0, carry on 1, 5 plus 4 and 9, 10, 0, carry on 1, 2 plus 2, 4 and 1, 5 and 4, 45,000 हो गया कि नहीं हो गया? यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मैं फिर से ये एंट्री एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। whenever this kind of entry is coming, first deduct the trade discount, whatever amount is coming, उसका जो है कैश डिस्काउंट निकाल के देख लो कितना हो रहा है, बराबर है। लेकिन उसमें से हमने आधा पे किया है, तो जो भी अमाउंट है उसके 2 इक्वल पार्ट कर दो, बराबर है। जितना आपने, अच्छा ऐसा नहीं होगा हमेशा आधा होगा, कभी 1/4 भी बोल सकता है कि 1/4 अमाउंट, तो इतने का 1/4 कितना होगा? तो 1/4 एक और 3/4 एक, लाइक दैट वे यू हैव टू डिवाइड। फिर यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा, फिर वो 1/4 का डिस्काउंट कितना है, यू हैव टू काउंट अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर आपका जो कॉमन सेंस है, बराबर है, जो आपकी विवेक बुद्धि है, रैशनल माइंड, इट विल वर्क देयर, वो जो है काम करेगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। लाइक दिस वे you have to pass the entries. Is it clear? Now 3 more entries are also there, तो हम उसके ऊपर भी जो है हम लोग वर्कआउट करते हैं। देख लो जरा इसको एक बार। सी नेक्स्ट वन। अब ये भी बड़ा मजेदार है। अभी पहले में हमने परचेज किया था, नाउ इट इज सेलिंग,
goods of rupees 15,000 after adding 20% profit to Nirmi at 10% trade discount and 10% cash discount. Half of amount received in cash. बराबर है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया कि 15,000 रुपए का गुड्स जो है क्या कहते हैं बेचा 20% प्रॉफिट ऐड करके। बराबर है। तो सबसे पहले तो ये 15,000 का अगर आप 20% देखो तो कितना होता है, देखो यहाँ पे कुछ 3,000 रुपये होगा शायद मेरे ख्याल से। 15,000 का 20% अगर आप देखो, 2 जीरो कैंसिल किया, 1 जीरो ये आ गया, 15 2 30। अब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपीज हो गया आपका। इज इट क्लियर? 18,000 रुपीज हो गया। ठीक है। अब ये 18,000 का वो क्या बोल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका अगर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1800। ओके। और यहां पर 0 0 10 में से 8 लेस करोगे तो कितना आएगा, 2। इधर से इधर कैरी किया था तो ये कितना हो गया आपका 7 में से 1 लेस करेंगे तो 6 एंड 1, यानी 16,200 की आपकी टोटल सेलिंग हुई है बच्चों। बराबर है। अब टोटल सेलिंग इतने की हुई है। अब उसने क्या बोला है उसमें से 10% कैश डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। इधर ही जो हम लोग 10% और कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले, तो अपने को आगे इजी पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके। तो 1620 इतना आ रहा है। बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 16,200 का अगर आप आधा करते हो तो 8100 ये आना चाहिए आपको। इज इट क्लियर? क्योंकि इतना आप ऐड करोगे तो 16,200 होगा। और अब ये समझो ये कैश है और ये जो है क्रेडिट है। ओके, दैट इज कैश एंड दिस इज क्रेडिट। अब जो है वो ये इसका हाफ करो 1620 का। बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। देख लो जरा यहाँ पे, 2 8 1 0। ओके। यानी कैश डिस्काउंट में आपको इतना लेस मिल रहा है तो 0 10 में से लेस करेंगे 9, और इधर जो है इधर से इधर कैरी किया था तो इधर जो है 0 हो गया था तो इधर 10 में से ऐड करेंगे 2 और इधर 7290। एक्चुअली आपने जो है कैश पे किया, सॉरी कैश रिसीव किया है 7290। ओके। और 8100 जो है अभी आपको और लेना बाकी है रिसीवर से, और आपने डिस्काउंट दिया है 810 रुपीज का, यानी दैट इज योर एक्सपेंस बिकॉज यू आर सेलिंग द गुड्स। आप गुड्स बेच रहे हो। तो अब यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, अभी कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट यू रिसीव्ड एग्जैक्टली 7290। ये आपको मिला है। डिस्काउंट कितने का दिया आपने 810, लेकिन हम उसको बाद में लिखते हैं, पहले ये कर देते हैं। ये हमको लेना अभी जो है क्या कहते हैं बाकी है। तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, निर्मी, कैश अकाउंट डेबिट, निर्मी अकाउंट डेबिट। अब निर्मी से और कितना लेना बाकी है हमको, 8,100 रुपए लेना बाकी है। ओके। हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 810 रुपीज का दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। हम बेच रहे हैं, जब हम बेचेंगे तो हमको हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस होगा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस टू बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू what has gone from us, goods, credit what goes out, to sales account,
सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे डिस्काउंट में आपने कितना डाला 810। अब जरा इन सबको टोटलिंग करोगे तो इट शुड बिकम इक्वल टू 16,200। ये सब मिलके 16,200 आना चाहिए। देखो जरा चेक करो, क्योंकि इसका हाफ इतना ही हो रहा है ना, हमको डिवाइड टोटल कितना मिलना चाहिए, ये इतना मिलना चाहिए हमको हिसाब किताब में, क्योंकि हमने एक्चुअल सेल हमने इतने का किया 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। इस एंट्री में हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जो है 15,000 का एक्चुअल गुड्स की कॉस्ट थी, 20% प्रॉफिट हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो अब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई 18,000 रुपए हो गई। 18,000 का हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट का निकाला तो 1800 हो गया, तो 18,000 में से 1800 लेस किया, तो अब हमने एक्चुअली में गुड्स 16,200 में बेचा। अब 16,200 में से हमने आधा कैश में और आधा क्रेडिट में बेचा, तो कैश जो हमने आधे में बेचा तो उसका हमने 10% निकाला हमने। लाइक दैट वे वी सेटल दिस अकाउंट। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो 0, 9 plus 1 10, 0, carry on 1, 8 plus 2 10 plus 11 and 1 12, 2, carry on 1, okay, and here 7 plus 1 8 and 8 16, that is 16,200. Is it clear? Like this way you settle this account. Okay, next, now this date is 10/10/8/20. Okay, next is your 15 goods returned to Mr. Ratan store ₹500 due to damage. बराबर है, आपने रतन स्टोर को गुड्स रिटर्न किया। याद करो वो एंट्री जो थी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 27 3,000 हमने जो डिस्काउंट दिया था उसमें से हमने 500 रुपए जो है क्या कहते हैं रतन स्टोर को उसको हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। ओके, सो ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। ओके, डेबिट द receiver. So here your next entry 15, that is Ratan store account debit to purchase return account. देखो बच्चों, हमने परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज गुड्स हैज गॉन फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर हमने किसी को सेल किया होता था और अगर हम उसको रिसीव करते थे तो वो सेल्स रिटर्न हो जाता था। इज इट क्लियर? सिमिलरली हमने किसी से परचेज किया एंड दैट परचेजिंग गुड्स वी आर गिविंग बैक, हम दे रहे हैं, गुड्स इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और डेबिट किसको किया हमने? रतन स्टोर को किया, क्योंकि वो हमसे रिसीव कर रहा है, तो रतन स्टोर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंड 500 रुपीज का हमने सामान रिटर्न कर दिया था। बराबर है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ये बोलता है सेटल अकाउंट विथ रतन स्टोर। रतन स्टोर के साथ में अकाउंट सेटल किया। ऐसी एंट्री आपको बहुत बार आ जाएंगे, भैया हमें पैसा वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सम? तो आपने रतन स्टोर से गुड्स परचेज किया था 6/8/20 को, ओके, एंड दैट वाज आल्सो 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 का 10% निकाला तो 3,000 आया, यानी 27,000 में। अब 27,000 में से भी आपने 500 रुपए का माल तो उसको रिटर्न कर दिया, बराबर है, तो एक्चुअल अब कितना पेमेंट करना है उसको, बराबर है, तो अब पेमेंट कितना होगा? अब यहाँ पे देखो ये 27,000 है, इसमें से आपने 500 रुपए का माल तो वापस कर दिया भैया, तो 26,500 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, बराबर है, यानी ये अमाउंट अब आपको पे करना है, मींस कैश विल गो दिस मच। नाउ हु विल रिसीव दैट? डेफिनेटली रतन स्टोर विल रिसीव, तो यहाँ पे आप एंट्री ये मार सकते हो, रतन स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है, क्योंकि आपने खरीदे हुए सामान का पेमेंट किया है एंड द डेट इज 19।
amount is your 26,500. तो ऐसी सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व दिस. यहाँ पर मैक्सिमम मैंने जितनी भी काम की एंट्रीज थी, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिया. नाउ द टाइम ऑफ योर प्रैक्टिस. Lot of examples, sums are given there, and at the same time so many sums are in your back side in your exercise. मैं भी आपको पीडीएफ में आप लोगों को जो है सम भेजूंगा, यूनिक टाइप के रहेंगे, थोड़ा दिमाग खपाना एंड यू सॉल्व दैट सम्स एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द लेजर. ओके, बाय, सी यू.